प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੋ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ 80 ਦਾ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹਨ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੋ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 23 ਜਨਵਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। कि निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं जी। पहला क्वेश्चन अपने को है जी, अति प्लस अंत शब्दों में संधि का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो नीचे चार आपां नूं ऑप्शन दित्तियां होईयां हन। अति प्लस अंत, इसका अपने को सही आंसर आएगा, इसनों जोड़ के की बन जाएगा, अत्यंत बन जाएगा जी। अपने को ख ऑप्शन आ जाएगी जी। अगला है जी, परमवीर चक्र समस्त पद का सही समास विग्रह चुनकर लिखे। तो इसका सही समास जो विग्रह है परमवीर चक्र का है जी, परमवीर को मिलने वाला चक्र। अगला है, सही विकल्प चुनकर भूलना शब्द का भाववाचक संज्ञा। भूलना का भाववाचक संज्ञा देखो चार ऑप्शन है जी, भूलेगी, भूलने वाला, भूलेगा या भूल। तो इसका सही आंसर है जी अपने को भूल। अगला है जी, कृष्ण शब्द का पर्यायवाची सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कृष्ण का जो पर्यायवाचक है वो देखो अपने को की हुंदा है, जिस दे विच देवकी नंदन भी कहा जाता है कृष्ण नूं ते गोपाल भी कहा जाता है जी। इट मीन क ते ग दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए आप इस ऑप्शन नूं सही मनांगे क्योंकि इस दे विच लिखा है क ते ग दोनों सही हैं। इट मीन जो घ ऑप्शन है ये अपने को सही है जी। अगला है जी, संस्कृत शब्द का विशेषण सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका है जी सांस्कृतिक, इसका अपने को ग ऑप्शन अपने को आ जाएगी जी। अगला है जी, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? नीति के दोहे पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो ये अपने को चार ऑप्शन दित्तियां हुई हैं जी। किसका साथ शोभा देता है? पहले है अलग अलग गुणों और अलग अलग स्वभाव वाले लोगों का, एक जैसे गुण और अलग अलग स्वभाव वाले लोगों का, एक जैसे गुण और एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का, थोड़े से मिलते हुए गुण और पूरी तरह से अलग अलग स्वभाव वाले लोगों का। तो इसका सही अपने को आंसर है जी, एक जैसे लोग गुण और एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का जो साथ है वो शोभा देता है। अगला है जी, गाता खग कविता के अनुसार फूल हमें क्या संदेश देते हैं? तो ऑप्शंस हैं जी, रोने का, मुरझाने का, सोने का या सदा मुस्कुराने का। तो इसका आंसर है जी, फूल हमें सदा मुस्कुराने का संदेश देते हैं। अगला है जी अपने को, अशिक्षित का हृदय, अशिक्षित का हृदय पाठ के अनुसार बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था?
ठाकुर शिव सिंहपाल सिंह, तेजा सिंह, मजदूर ਜਾਂ मनोहर सिंह के पिता। तो इसका सही आंसर है जी क वाली ऑप्शन, ठाकुर शिवपाल सिंह के पास उसका जो पेड़ था वो गिरवी था। अगला है जी नर्स पाठ के आधार पर अनुसार महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था। 4 ऑप्शन है जी मरीठा, मांजरेकर, सुसान या सरस्वती। तो इसका सही आंसर है जी सिस्टर सुसान। हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इसका सही विकल्प चुनना है। तो 4 ऑप्शन है सहायता प्रदान करने वाले को ना धमकाना, हमारी बिल्ली का दूसरे के कहने में म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालना, हमारी बिल्ली का हमारे कहने से ही म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालना, या सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। तो इसका सही ऑप्शन अपने को है जी सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। ये होता है हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं। तो आओ अगला देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला तुसीं इस पूरे गद्यांश ਨੂੰ पढ़ लेना है जी, तो पढ़ के अपने को नीचे जो क्वेश्चन अपने को पूछे गए इन्हों के आप आंसर देखते हैं जी एक एक करके। कि जिस तरह क्वेश्चन है जी पहला अपने को रविंद्रनाथ का पड़ोसी का व्यवहार क्यों अखरा, पड़ोसी के व्यवहार से टैगोर का व्यवहार किस प्रकार प्रभावित हो रहा था, पड़ोसी ने अपने व्यवहार की भूल किस प्रकार सुधारी, पुरस्कार शब्द का क्या अर्थ है, उपयुक्त गद्यांश का केंद्रीय भाव लिखें। तो पहला इस पूरे गद्यांश को तुसीं पढ़ लेना है, तो फिर एक एक करके आप इन्हां क्वेश्चन के आंसर देखते हैं जी। देखो जी पहला क्वेश्चन अपने को इस तरह सी कि रविंद्रनाथ को पड़ोसी का व्यवहार क्यों अखरा। रविंद्रनाथ को पड़ोसी का व्यवहार इसलिए अखरा क्योंकि उसने उसे बधाई नहीं दी थी। तो तुम सिर्फ इन्ना ही आंसर लिख सकते हो, क्योंकि उसने उसको बधाई नहीं दी थी। तो नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट अपने को सेकंड क्वेश्चन इस तरह सी जी पड़ोसी के व्यवहार से टैगोर का व्यवहार किस प्रकार प्रभावित हो रहा था। पड़ोसी के व्यवहार से रविंद्रनाथ जी भुलाने की कोशिश करते परंतु वह भुला नहीं पाते। पड़ोसी का चेहरा बार बार उसके सामने आने पर वह क्रोधित हो जाते थे। ये देखो ये सारा अगर आप पैराग्राफ के विचों ही लेना है। पहला क्वेश्चन अपने को की सीगा कि क्योंकि पड़ोसी ने उन्हें बधाई नहीं दी थी, ये पहले का आंसर है। दूसरे वाले का आंसर इत्थों लैके आप इत्थे तक लिख देना है कि वो क्रोधित हो जाते थे। ये आप पैराग्राफ के विचों ही आंसर लभने हैं जी सर। तीसरा है जी पड़ोसी ने अपने व्यवहार की भूल किस प्रकार सुधारी। जब रविंद्रनाथ जी ने पड़ोसी के चरण स्पर्श किए तो पड़ोसी की आंखें गीली हो गई। पड़ोसी ने रविंद्रनाथ के चरण स्पर्श कर अपनी भूल सुधारी। ये देख ये भी आप इतों ही लभना है कि उसने समुद्र गहरे इस तरह देखो टैगोर ने अपनी गलती का एहसास करते हुए दूसरे छोड़ देती और वह तत्काल उनके घर जाकर उसके चरण स्पर्श किए। उसकी आंखें गीली हो गई और वह बोला कि आप जैसे देवतुल्य को ये पुरस्कार मिलना ही चाहिए थे। ये कहकर टैगोर के चरणों में स्पर्श किया। इस लाइन तो आप इसका आंसर लभ्या है जी। अगला है जी पुरस्कार शब्द का अर्थ क्या है। पुरस्कार शब्द का अर्थ है इनाम, जहाँ इसको हम उपहार भी कह सकते हैं। उपहार, इनाम लिख लो जहाँ उपहार लिख लो। अगला है जी उपयुक्त गद्यांश का केंद्रीय भाव लिखें। तो केंद्रीय भाव होगा क्रोध सद्गुणों का नाशक होता है। तो ये इसका केंद्रीय भाव आ जाएगा। ये सिर्फ आप इन्ना ही आंसर लिखना है कि क्रोध सद्गुणों का नाशक होता है। देखो ये भी आप इत्थों लिखना है। देखो पैराग्राफ के विचों जो क्रोध है सद्गुणों का नाशक होता है, ये अपने को इसका आंसर आ जाएगा, इसका शीर्षक आ जाएगा, केंद्रीय भाव आ जाएगा। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट अपने को है निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। समरूपी भिन्नार्थक शब्द अचल और अचला में अचल का क्या अर्थ है और अचला का क्या अर्थ है जी, ये आप लिखना है जी। देखो तो जो अचल का अर्थ होंदा है पर्वत, तो अचला का अर्थ होंदा है पृथ्वी। तो ये देखो जो अचल है, अचल का अर्थ होएगा अपने को पर्वत, तो अचला का अर्थ होएगा अपने को पृथ्वी। ये तुसीं इस जगह ते आप इस जगह पा देना है पृथ्वी। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट अपने को है जिसका आचरण बुरा हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
में निम्नलिखित में सही शब्द के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो देखो, जिसका आचरण बुरा हो ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है, उगलना शब्द का विलोम मतलब विपरीत शब्द क्या है? सही उत्तर बताना है। तो उगलना का आएगा निगलना। तो देखो, उगलना का अपने को उल्टा जाएगा निगलना। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर शब्द के अनेकार्थी अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। उत्तर उत्तर दा इत्थे देखो अपने को की मतलब है। उत्तर का मतलब बाद का, उत्तर दिशा ज जवाब, ये तीनों ही सही हैं। तो इसलिए आपां ये वाले जो हैं किरण नहीं आएगा, तो नीचे उतरना नहीं आएगा। इट मीन ये अपने को जो सही ऑप्शन आएगी वो फर्स्ट वाली ही ऑप्शन अपने को सही है। ये वाली ऑप्शन के नाल आपां इसदा मिलान कर देना है कि उत्तर का मतलब है बाद का, उत्तर दिशा ਜਾਂ जवाब। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी, इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखें। तो आओ इसका आंसर देखते हैं जी। तो देखो इसका आंसर क्या है, सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी। इसका सही आंसर आएगा, सिपाही ने युद्ध में प्राणों की बाजी लगा दी। तो इसका सही आंसर है जी अपने को, इसमें तुसी नोट कर लेना है। तो आओ नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो नैक्सट देखो जी, अपने को आ गया है भाग ख। निम्नलिखित में से किसी एक पदाक्ष की प्रसंग व्याख्या, प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। दोनों मतलब ये दो हमें दिए हुए हैं पदाक्ष, तो इन्हां विच और है अथवा मतलब दोवां चों एक करना है, जां उपर वाला जां नीचे वाला, पर तुहाडे लई मैं दोनों ही कीते हैं। तो आओ एक एक करके इन्हां दोनों के आंसर देखते हैं जी। तो इस पहला देखो, तुसीं इस जो पदाक्ष हैं इन्हां लाइनां नूं तुसीं एक बार पढ़ लेना है जी। तो पढ़ के आओ इन्हां दी आपां प्रसंग ते व्याख्या देखते हैं। प्रसंग इस तरह है जी अपने को, प्रस्तुत पद मीरा भाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इस पद में कवित्री ने बाल कृष्ण की मनोहारी छवि का वर्णन करते हुए उसे अपने नेत्रों में बसाने का वर्णन किया है। व्याख्या इस तरह है, कवित्री अपनी कामना व्यक्त करते हुए कहती है कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नैनों में निवास करने की कृपा करें। आपकी मोहित करने वाली आकृति तथा सावले रंग की सूरत है। आपके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। आपने मोर के पंखों का मुकुट सिर पर और कानों में मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं। आपके माथे पर लाल रंग का तिलक सुशोभित हो रहा है। आपके होठों पर अमृत समान मधुर स्वर रस की वर्षा करने वाली बांसुरी तथा हृदय पर विजंती माला विराजमान है। छोटी छोटी घंटियां आपकी कमर पर बंधी हुई हैं तथा पैरों में घुंघरू बंधे हैं जिनकी मधुर गुंजार सुनाई दे रही है। मीरा के प्रभु संतों का दुख सुख प्रदान करते हैं तथा अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। तो स्टूडेंट देखो सैकेंड इस तरह है जी, पहला ये जो पंक्तियां हैं इन्हां नूं तुसीं पढ़ लेना है जी। तो इसकी देखो पहला प्रसंग इस तरह है, प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य के लिए मरते हैं में से ली गई हैं, जिसमें उर्मिला ने किसानों के सहज जीवन की प्रशंसा करते हुए राज्य के लिए व्यर्थ ही लड़ने मरने वालों के जीवन को व्यर्थ माना है। तो इसका देखो अपने को व्याख्या किस तरह करनी है। उर्मिला कहती है कि विद्वान लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते हैं, चाहे उसमें कुछ प्राप्त हो या ना हो, परंतु किसान इन व्यर्थ की बातों को त्याग कर सहज धर्म को अपनाते हैं। वह विद्वानों के चक्कर में ना पड़कर धर्म में वास्तविक स्वरूप को सहज रूप से अपनाते हैं, जबकि हम राज्य के लिए आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट अपने को इस तरह है जी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दे। तो ये अपने को कुछ क्वेश्चन हैं, तो आओ एक एक करके इन्हां सारे ही जो क्वेश्चन हैं उन्होंने आंसर देखते हैं जी। एक बार सारे तुसीं
क्वेश्चन पढ़ लेने हैं तो आप एक एक करके ना सारे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है जी अपने को, प्रश्न देखो जी, पहला है शल्य कौन था। तो आंसर लिखना है जी अपने को, उत्तर लिखना है शल्य महाबली कर्ण का सारथी था। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, प्रश्न अगला है जी, साधु ने तवीज़ का प्रयोग किस पर किया। तो आंसर लिखना है साधु ने तावीज़ का प्रयोग कुत्ते पर किया। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो इसमें अगला क्वेश्चन है जी, ममता कौन थी। तो उत्तर लिखना है चूड़ामणि की बेटी। जो ममता है वो चूड़ामणि की बेटी थी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी। तो आंसर लिखना है जी 1 सप्ताह तक। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, दादाजी की पोती इंदु ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी। तो उसने लिखना है प्राइमरी तक। अगला क्वेश्चन है जी, जयदेव की पत्नी कौन थी। तो आंसर आएगा जयदेव की पत्नी नीलम थी। तो आओ सुन आप नेक्स्ट देखते हैं जी। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने को है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दें। तो ये देखो टोटल अपने को 6 क्वेश्चन हैं। तो इन्हों विचों 4 किसी का आंसर देना है तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं 6 ਦੇ 6 ਕੀਤੇ ਹਨ। तो आओ एक एक करके ने सारे ही क्वेश्चन के आंसर देखते हैं जी। तो विद्यार्थियों अगे चलने तो पहला जेकर तुसीं मेरे चैनल ਨੂੰ हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो इसनों सबसक्राइब जरूर कर लेना है जी। चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करके तो बैल आइकन ਨੂੰ जरूर प्रेस कर लेना है ਤਾਂ जो मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो पहला मिल सके। तो बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस करके ऑल ਦੇ नोटिफिकेशन ਨੂੰ जरूर ऑन कर लेना है जी। तो आ ਹੁਣ ਆਪਾਂ एक एक करके इन्होंने सारे ही क्वेश्चन के आंसर देखते हैं जी। तो इसमें पहला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, सिस्टर सुजान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया। तो आंसर लिखना है जी, जब सिस्टर सुजान ने महेश को रोते देखा तो उसने महेश को बताया कि उसका बेटा भी उसी की भांति रोता है। उसने बताया कि वह बहुत शैतान है, उसका नाम भी महेश है, वह अभी 3 महीने का है। उसने महेश को ये भी बताया कि आया जब उसे खेलती है तो ये गाना गाती है तो वह खुशी से हाथ पैर ऊपर नीचे करने लगता है जैसे नाच रहा हो। महेश के पूछने पर वह बताती है कि उसके बेटे का अभी बोलना नहीं, उसके बेटे को भी बोलना नहीं आता, इसलिए वह अभी अगू अगू गूं गूं बोलता है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो नेक्स्ट है जी, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए। बसंती की आंखों में खुशी के आंसू थे, उसे ऐसी प्रसन्नता भरा जीवन अब तक कभी प्राप्त नहीं हुआ था। वह अपने पुश्तैनी घर में जैसे तैसे अकेली जीवन काट रही थी, अब बेटे और उसके परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। उसके पुत्र ने आज के कुछ स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए। आंसर है जी, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने भारतीय धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। आपने विभिन्न संप्रदायों, धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का ज्ञान भी साधुओं की संगति में रहकर प्राप्त किया। राग विद्या भी आपने साधुओं की संगति में रहकर ही प्राप्त की थी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं। जब हम सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं, सड़कों पर कूड़ा करकट फैलाते हैं, घर दफ्तर गली गंदा करते हैं, कहीं पर समय से लेट पहुंचते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, उस समय हम अपने देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला की विषय में क्या बताया। करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के बारे में बताया कि वह बहुत ही अभिमानी है, वह अपने मायके के घर को ससुराल के घर से ज़्यादा अच्छा मानती है, ससुराल के घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। करमचंद दादाजी को बताते हैं कि वह मलमल के थान और रजाई जो वह लेकर आए थे, सभी ने ये रख लिया, लेकिन छोटी बहू ने
उन्हें रखने से इनकार कर दिया। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों कर दी? जयदेव को गुप्तचरों से समाचार मिला है कि रात के अंधेरे में पुलिस पिकेट से 1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग सोना स्मगल करके बॉर्डर पर पार करने वाले थे या करने वाले हैं। जयदेव तस्करों को पकड़ने का ये अवसर हाथ से खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो स्टूडेंट ये सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो ਆਪਾਂ ਹੁਣ कर रहे हैं। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने को है जी क्वेश्चन नंबर 5 है जी, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जी। टोटल देखो अपने को 5 क्वेश्चन हैं ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 3 ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ 5 ਦੇ 5 ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ क्वेश्चन हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ आंसर देखते हैं जी। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मनोहर सिंह का चित्रण की। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी, इसका आंसर देखते हैं। मनोहर सिंह अशिक्षित का हृदय कहानी का मुख्य पात्र है। उसकी आयु 55 वर्ष के लगभग है। पहले वह फौज में नौकरी करता था, अब वह अकेला रहता है। उसका कोई सगा संबंधी नहीं है। वह अपनी मेहनत व स्वाभिमानी व्यक्ति है, वह एक मेहनती और स्वाभिमानी व्यक्ति है। वह ठाकुर शिवपाल सिंह से कर्ज लेकर फसल उगाना चाहता था, लेकिन वर्षा ना होने के कारण पैदावार नहीं हुई तथा वह ठाकुर का कर्जा नहीं चुका सका और अपना नीम का पेड़ उसके पास गिरवी रख दिया। वह अत्यंत विनम्र हृदय वाला भावुक व्यक्ति है। उसको अपने पेड़ से बहुत लगाव है, क्योंकि वह उसके पिताजी के हाथ का लगाया हुआ है। इसलिए जब ठाकुर ने पेड़ को कटवाना चाहा तो उसे बहुत दुख होता है। वह किसी भी हालत में पेड़ को काटने देने नहीं चाहता तथा ठाकुर की जिद करने पर वह पेड़ के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है। तेजा सिंह को पेड़ को बचाने में उसकी सहायता करता है। तेजा सिंह पेड़ को बचाने में उसकी सहायता करता है और वह उस पेड़ का मालिक बनाने की घोषणा कर देता है। तो वह उसे पेड़ का मालिक बनाने की घोषणा करता है। इस प्रकार वह एक सरल हृदय वाला अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति होते हुए भी अपनी महानता का परिचय देता है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। दो कलाकार जो शीर्षक है हमारे विचार में पूर्णतया सार्थक है। अरुणा और चित्रा दोनों सखियों को लेखिका ने दो कलाकार माना है। चित्रा अपनी चित्रकला के कारण एक कलाकार का दर्जा पाती है, वहीं अरुणा अपने मानवीय गुणों के कारण चित्रा से भी बड़ा कलाकार कहलाती है। जिस भिखारन और उसके रोते हुए बच्चे का चित्र बनाकर चित्रा देश विदेश में प्रसिद्धि पाती है, उन्हीं अनाथ बच्चों की पालना पोषण कर अरुणा चित्रा से भी बड़ा कलाकार कहलाती है। इस तरह इस कहानी का शीर्षक दो कलाकार एक उपयुक्त शीर्षक है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लेखक ने देश के नागरिकों को चुनाव में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है? लेखक ने देश में नागरिकों को चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसे चुनाव में सूझबूझ से मतदान करना चाहिए। अपनी बुद्धि व विवेक के अनुसार अच्छे गुणों वाले व्यक्ति को मत देना चाहिए। किसी भी लालच या लोभ में वश में आकर गलत व्यक्ति को मतदान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। मतदान करते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो नेक्स्ट है जी, आशय स्पष्ट कीजिए। क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते हैं? तो इसका आप मीनिंग दसना है जी। इन पंक्तियों का भाव है कि राजेंद्र बाबू जैसे व्यक्ति आजकल देखने को नहीं मिलते। शायद ईश्वर से ऐसा सांचा टूट गया है जिनमें राजेंद्र बाबू जैसे कोमल चरित्र वाले व्यक्ति का निर्माण होता था। अर्थात आजकल भगवान ने राजेंद्र बाबू जैसे लोगों का निर्माण करना बंद कर दिया है। आजकल के लोगों में उन जैसे व्यक्तित्व तथा गुणों का अभाव है। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व क्यों होता है?
डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर इसलिए गर्व होता है क्योंकि जयदेव ने बड़ी वीरता और साहस से तस्करों का मुकाबला करके उससे 5 लाख का सोना पकड़ा। उनसे 5 लाख का सोना पकड़ा। उसे गवर्नर की तरफ से 1,000 रुपये का इनाम भी दिया गया। इस राशि को जयदेव ने शहीद पुलिस अफसरों की विधवाओं को देने की घोषणा की। जयदेव की इस वीरता और त्याग की भावना के कारण डीसी को जयदेव तथा उसके परिवार पर गर्व होता है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अपने को है जी भ ग है, निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। देखो पूरी दुनिया ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो इसका देखो आंसर किस तरह अनुवाद किस तरह करना हिंदी में। पूरे विश्व में 8 मार्च का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकारों की ओर से महिलाओं के विकास के लिए कई नीतियां बनाई जाती हैं। लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो अपना इत्थे तक ही आंसर है जी, इत्थे तक असी अपने को। तो आओ नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो नैक्सट देखो जी भ घ। तो इस देखो अपने को की है जी निम्नलिखित में किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं दोनों ही ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, आपका नाम अमिताभ है, आपका सेक्टर 17 चंडीगढ़ में बहुत बड़ा 5 सितारा होटल है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपको अपने होटल के लिए एक मैनेजर की आवश्यकता है। वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत मैनेजर की आवश्यकता का प्रारूप तैयार करके लिखिए। एक तो ये करना है। दूसरा है आपका नाम अनुकांत कौशल है, आप दयानंद पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ में पढ़ते हैं, आपका 10वीं कक्षा में प्रतिनिधि छात्र हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र दल दिनांक 10 को शैक्षिक भ्रमण हेतु चंडीगढ़ गया था, जहां उन्होंने रोज गार्डन व रॉक गार्डन के साथ साथ पंजाब विश्वविद्यालय की सैर की। इस आधार पर प्रतिवेदन लिखिए। तो आओ एक एक करके ना आंसर देखते हैं। देखो जो मैनेजर की आवश्यकता के लिए जो हमने जो लिखना है, तो ये देखो जी विज्ञापन किस तरह लिखना है। सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक प्रतिष्ठित 5 सितारा होटल में काम करने के लिए एक मैनेजर की आवश्यकता है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होटल मैनेजमेंट में डिग्री, वेतन योग्यता अनुसार 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। संपर्क करें। इत्थे तुसीं अपना मोबाइल नंबर लिख देना है जी। तो नैक्सट देख लीजिए जी अपने को शैक्षिक भ्रमण के रिलेटेड है। दयानंद पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ की कक्षा 10वीं के 10 छात्रों का एक दिनांक इत्थे दिन लिख देना है किहड़े दिन गए सी जी को शैक्षिक भ्रमण के लिए चंडीगढ़ गया था, जहां उन्होंने रोज गार्डन, रॉक गार्डन, पंजाब विश्वविद्यालय आदि स्थानों की सैर की। साथ गए अध्यापकों ने सभी स्थानों की विशेषताओं को से परिचित कराते हुए भ्रमण के महत्व पर प्रकाश डाला। सभी छात्र इस भ्रमण यात्रा से अत्यंत प्रसन्न हुए। इत्थे तुसीं नाम लिख देना है। प्रतिनिधि कक्षा 10वीं दयानंद पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़। तो आओ नैक्सट देखते हैं जी। तो नैक्सट देखो जी नैक्सट अपने को है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरों व लोकोक्तियों का वाक्य में इस तरह प्रयोग करें कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। पहला है जी फूल झड़ना, रुपया पानी में फेंकना, बंदर घुड़की, गीदड़ धमकी, जहाँ है का वर्ष जब कृषि सुखाने। तो आओ एक एक करके ये चारे ही जो मुहावरे हैं उन्हें देखते हैं जी। पहला ही देखो अपने को फूल झड़ना मतलब मधुर बोलना। सीमा जब भी बोलती है तो ऐसा लगता है कि मुंह से फूल झड़ रहे हों। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी रुपया पानी में फेंकना, व्यर्थ खर्च करना। आजकल के इस दिखावे के युग में लोग शादियों में रुपया पानी में फेंकते हैं। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है जी, बंदर घुड़की गीदड़ धमकी, झूठा आरोप दिखाना। राजीव कुछ करता धरता नहीं है, लेकिन बेकार ही सबको बंदर घुड़की गीदड़ धमकी देकर डराता रहता है। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। तो नेक्स्ट है जी अपने को, का वर्षा जब कृषि सुखाने, असमय की सहायता लाभदायक नहीं होती है। अरे चोर तो उसके घर से सब कुछ लूटकर भाग गए हैं, अब पुलिस के आने से क्या फ़ायदा। कहा भी है, का वर्षा जब कृषि सिखाने सुखाने। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर देना है। तो हमारे लिए मैं दोनों ही देते हैं। आपका नाम अरविंद कुमार है, आप मकान नंबर इसमें रहते हैं, सेवा सदन हाई स्कूल दिल्ली में प्रिंसिपल की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए विज्ञापन दिया गया है। आप स्कूल के प्रिंसिपल को डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद पर नियुक्त होने लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। एक ये है। दूसरा है, आपका नाम विराट कुमार है, आप मकाम नंबर 10 में रहते हैं, आप मुंबई के जन चेतना समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सड़क दुर्घटनाओं के रोकने के लिए सुझाव संबंधी पत्र लिखिए। तो आओ एक एक करके इन्हों दोनों ही ਦਾ ਆਪਾਂ आंसर देखते हैं जी। तो इन्होंने की आंसर अपने को आ सकता है। तो इसमें देखो जी, अपने को जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पद का नियुक्त होते हैं तो आवेदन पत्र लिखना है जी। सेवा में प्रधानाचार्य दयानंद हाई स्कूल ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, जो भी है उस ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ बुक तो देख के ਜਾਂ अपना जो भी ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ लिख लेना है। विषय डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए आवेदन पत्र। महोदय, दैनिक ट्रिब्यून दिनांक देश ये डेट लिख देनी है में प्रकाशित आपके स्कूल के विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपके स्कूल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 5 पद रिक्त हैं। मैं इनके लिए एक पद के लिए अपनी सेवाएं निम्नलिखित योग्यताओं के आधार पर प्रस्तुत करता हूँ। इतने तुसी अपनी योग्यता लिखनी है। सामान्य परिचय, जिस तरह पहला नाम लिख देना है, जन्म लिख देना है, पिता का नाम, माता का नाम, पैतृक व्यवसाय, पिता जी का काम की है, मासिक किन्नी आय है, महीने की किन्नी इनकम है वो लिख देनी है जी। पता लिख देना है जी अपना पूरा तुसी, वर्तमान नागरिकता भारतीय, तो ये अपने को जो जाति है वो लिख देनी है जी। मोबाइल नंबर लिख देना है, तो ईमेल, तो इत्थे अपनी जो शैक्षिक योग्यता ਤੁਹਾਡੀ जो योग्यता है किन्नी तुसी पढ़ाई की हुई है वो सारा अपना इत्थे तुसी लिख देना है जी। तो इस तरह तुसी अपना जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ਲਈ आवेदन पत्र दे सकते हो। तो आओ नैक्सट देखते हैं जी। तो नेक्स्ट देखो जी, जन चेतना मुंबई के समाचार पत्र के मुख्य संपादकों के नाम सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव संबंधी एक पत्र। सेवा में मुख्य संपादक जन चेतना मुंबई, दिनांक डेट लिख देनी है। विषय है जी सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव संबंधी पत्र। मान्यवर, मैं अब आपके लोकप्रिय समाचार पत्र जन चेतना के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देना चाहता हूँ। आजकल सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। सड़कों पर आम आदमी का चलना दुर्भर हो गया है। नकली लाइसेंस धारकों, अप्रशिक्षित वाहन चालकों तथा नशेड़ियों के द्वारा खतरनाक व बिना योग्य यातायात के नियमों का पालन किए जाने पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार अधूरे कागजात होने के कारण वाहन चालक चालान के डर से तेजी से बच निकलने के लिए कारण भी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। ट्रक, ट्रालियां, रेहड़ी आदि पर अनुचित ढंग से जरूरत से अधिक लादा गया सामान भी अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनता है। इसके अलावा वाहनों से होने वाली ध्वनि प्रदूषण भी चिंता का विषय है। निरंतर बढ़ रही दुर्घटनाओं के रोकने के लिए यातायात कर्मचारियों को गलत पार्किंग करने वाले, निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने वाले, नशेड़ी चालकों व अन्य यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो निर्धारित चालानों की संख्या को पार कर जाता है उसका सदा के लिए लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि प्रशासन इस दिशा में सख्त होता है तो किसी की क्या मजाल है कि वह नियमों की अवहेलना करे। उसके
अतिरिक्त समय समय पर लोगों को यातायात के नियमों की प्रति जागरूक करना चाहिए। आशा है कि समाचार पत्र में इस लेख को पढ़कर जनता का प्रशासन इस ओर ध्यान देगी। धन्यवाद। विराट कुमार, शिवाजी नगर, मुंबई ते मोबाइल नंबर। तो आप इसको नेक्स्ट देखते हैं जी। तो इसको नेक्स्ट देखो जी। नेक्स्ट है जी अपने को निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो ये देखो, तीन हाँ जी। जन संचार के माध्यम, मैंने लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया, और कोचिंग संस्थानों पर का बढ़ता जंजाल। तो एक करना है, पर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ आओ एक एक करके ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ आंसर देखते हैं जी। तो पहला सुनो इस तरह है जी अपने को। नेक्स्ट देखो जी। जन संचार के माध्यम प्रत्यक्ष रूप से दूसरों को कहने की अपेक्षा समाज में हर वर्ग के साथ संवाद स्थापित करना जनसंपर्क या जनसंचार कहलाता है। कि प्रत्यक्ष रूप में अपनी बात दूसरों तक कहना। प्राचीन समय में विचारे, सूचनाओं व आदेशों को शिलालेख, भोजपत्र, मुनादी आदि के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता था। लाउडस्पीकर के माध्यम से भी संदेश पहुंचाए जाया करते थे। समय के साथ साथ तकनीकी विकास होने पर संचार के साधन भी आधुनिक हो गए हैं। आजकल समाचार पत्र, मैगजीनों, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट तथा मोबाइल जनसंचार के संसाधन बन गए हैं। इनका शिक्षा, कला, व्यवसाय, मनोरंजन, व्यापार, राजनीति आदि क्षेत्रों में अद्भुत योगदान है। समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से युवा वर्ग पर तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उसके रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा तथा व्यवहार आदि पर भी गहरा असर पड़ा है। किंतु समाज पर इसकी अधिकता व नई नई तकनीकों के कारण मानव की मानसिक शांति भी भंग किया है। इसके अतिरिक्त ड्रग्स, हिंसा, हत्याएं व साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। अब समाज को तय करना है कि वह उनका सदुपयोग करेगा अथवा दुरुपयोग करेगा। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। अगला है जी, मैंने लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया। लोहड़ी भारतीय संस्कृति का पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। ये प्रतिवर्ष 13 जनवरी को संपूर्ण भारत के वर्ष में बड़े हर्षोल्लास एवं मौज मस्ती के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष मैंने लोहड़ी का त्यौहार अपने मामा जी के घर अमृतसर में मनाया। मैंने एक दिन पहले ही अपने मामा जी के घर पहुंच गया था। लोहड़ी वाले दिन सुबह से ही ढोल नगाड़े बजने आरंभ हो गए थे। सब गले मिलकर एक दूसरे को पावन पर्व का बधाइयाँ दे रहे थे। मैंने भी अपने भाई के साथ मिलकर पूरे मोहल्ले वालों को बधाई दी। सब लोग एक दूसरे घर मिठाई, रेवड़ी, मूंगफली बांट रहे थे। उस दिन शाम को मोहल्ले के बीच में सब ने अपने अपने घर से लकड़ियां लाकर बड़ा ढेर लगा दिया। सभी उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। पूरी श्रद्धा एवं आनंद के साथ लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित की गई। तत्पश्चात सबने लोहड़ी की पूजा अर्चना की। अब उसकी परिक्रमा कर रहे थे और गीत गा रहे थे। पूजा के बाद सबने रेवड़ी, मूंगफली आदि का प्रसाद बांटा गया। इसके बाद ढोल नगाड़े बजने लगे। तभी सभी लोग झूम उठे। लड़कियां गिद्दा पाने लगीं और लड़के भंगड़ा करने लगे। सचमुच ये लोहड़ी का त्यौहार मैंने खूब आनंदपूर्वक मनाया। ये मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी, कोचिंग संस्थानों का बढ़ता जंजाल। वर्तमान युग कंपटीशन का युग है। आज हर क्षेत्र में प्रतियोगिता है। आज के विद्यार्थियों को पग पग पर अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं का से गुजरना पड़ता है। मेडिकल, सेना, कानून, प्रशिक्षित सेवाएं, इंजीनियरिंग आदि कोर्सों में प्रवेश लेने के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, अनेक प्रकार की नौकरियां पाने के लिए भी आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसके पास करने के उपरांत ही प्रतियोगी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आज के युग में प्रतियोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। एक एक सीट का दाखिला लेने के लिए, नौकरी पाने के लिए हजारों लोग प्रतियोगी पंक्तिबद्ध होकर परीक्षा में दे रहे हैं, जिसके चलते आजकल कोचिंग संस्थानों का भरमार भी हो रही है।
क्योंकि हर कोई अपने को सिद्ध करने के लिए कोचिंग संस्थाओं की ओर भागता है। परिणाम स्वरूप छोटे से छोटे बड़े शहरों तक कोचिंग संस्थानों ने अपना जाल बिछा रखा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में तो जगह जगह बड़े बड़े संस्थान खुले हुए हैं जिनसे लाखों लोग पढ़ रहे हैं। ये संस्थान लाखों की फीस ऐंठ कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग से बढ़कर स्वस्थ ध्यान जरूरी है। स्वस्थ ध्यान से ही प्रतियोगी के अंदर आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है और वह आत्मविश्वास भी सफलता होती है। इसलिए हमें स्वस्थ ध्यान की ओर ध्यान बनाना चाहिए, उसको आधार बनाना चाहिए। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। तो आओ उसमें नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से किसी एक पत्र को अपने उत्तर पुस्तिका पर निर्देश अनुसार उतार कर भरें। तो पहला देखो, मान लें कि आपका नाम जीनत अमान है। आपका भारतीय डाक के सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है। आपको अपने इस खाते में से दिनांक 24/7/2025 को 6,600 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरें। तो ये देखो किस तरह इसनूं भरना है जी। देखो पहला देखो दिनांक अपने को केड़ा है जी, दिन केड़ा है जी, देखो 24/7/2025। तो इत्थे आपां भर देना है जी 24/7/2025 भर देना है दिनांक। फिर अपने को अगला देखो की है जी, बचत खाता नंबर ये वाला है, ये वाला भर देना है आपां जी। देखो इस तो ये देखो जी आपां बचत खाता भर दिता है। उस तो बाद देखो अपने को है जी अगला की है जी, कृपया मुझे इतने रुपए इत्थे अंकां विच ते इत्थे शब्दां विच लिखने हैं। कितने रुपए आपां लिखने हैं जी 6,600। तो इस जगह तुसी लिख देना है जी इस तरह 6600। तो इस जगह केवल 6,600 रुपये शब्दों में लिख दिया का भुगतान करें। तो जमाकर्ता के हस्ताक्षर जिसने कढ़वाने हैं उसका नाम की है जी, देखो अपने को उसका नाम है जीनत अमान। तो इत्थे लिख देना है जीनत अमान, इस तरह जीनत अमान। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। अगला अपने को इस तरह है। नेक्स्ट विच देखो अपने को की लिखा गया है। मान लीजिए आपका नाम जेठालाल है। आपका पता इस तरह है, मकान नंबर दिया हुआ है, सेक्टर चंडीगढ़ में है। आपको ये एक ट्रेन का नंबर है 6924 6924 शताब्दी एक्सप्रेस से दिनांक 24/5/2023 को चंडीगढ़ से दिल्ली तक यात्रा करनी है। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। तो देखो कड़ी गाड़ी संख्या और नाम हमें पहले दिया हुआ है 6924 6924 शताब्दी एक्सप्रेस है। यात्रा की तिथि, हुण यात्रा की तिथि देखो की है, तिथि अपने को लिखी हुई है 24/5/2024। तो इत्थे देखो 24 इत्थे आपां लिखना है 24/5/2023। फिर देखो यात्रा आरंभ करने का स्टेशन कहाँ से कहाँ तक जानी है, देखो चंडीगढ़ से दिल्ली। इस जगह चंडीगढ़ लिख देना, इस जगह दिल्ली लिख देना है जी। तो इस तरह देखो जी आपां अपना डेट लिख ली है जी। स्टेशन चंडीगढ़ से दिल्ली, स्टेशन तक आरक्षण, नाम व पता क्या है जी जेठालाल, मकान नंबर 122 सेक्टर 13 चंडीगढ़। ये सारा आप ऊपरों ही लिखना है। तो फिर आवेदक के हस्ताक्षर की लिखना है इस जगह जेठा लाल आ जाएगा जी। तो होप अस तुहानूं सारे ही जो क्वेश्चन करवाए हैं अच्छी तरह समझ लग गए होंगे। जेकर वीडियो तुहानूं अच्छी लगी तो इसनूं लाइक और शेयर जरूर कर देना है जी। मेरे चैनल में सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना है। तो हुण आपां मिलांगे एक नवीं वीडियो विच एक नवीं जानकारी लैके, उदों तक लई धन्नवाद।